الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال تعالى في موضع آخر: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. صدق الله العلي العظيم. ونفعنا رسوله النبي الأمين الرسول الكريم. ونكون على ذلك من الشاكرين والشاكرين. ایک ہاتھ دے دیں ابھی ماموئے بولا رہے ماموئے بولا وہی لگن تو گاڑا گا ہندو الہی اور فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنا اور دوسری مناسبت اس مجلس کو مثال ثواب سے علی جناب منظور خان صاحب کے والدین اور ان کے ماولدات کی طرف سے منصوب ہے تو آج کی یہ بزم دو نسبتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے تھوڑی دیر تک آپ سے روبرو ہوں انشاءاللہ دونوں موضوع پر اہل خانہ خواہش ہے کہ کوئی گفتگو ہو جائے تاکہ والدین کی روح کو تسکین بھی مل جائے اور کچھ مسائل پر تذکرہ کر جائے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ایک جگہ نہیں متعدد جگہوں میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، انہیں اف تک نہ کرو. اف ایک ایسا لفظ ہے کہ انسان کی زبان سے بسا اوقات نکل جایا کرتا ہے. اللہ نے اس اف کو بھی ختم کر دیا کہ اپنے والدین کی شان میں کبھی بھی اف بھی نہ کرنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور نہ ہی انہیں پھرتیاں دو، اف بھی نہ کہو. اگر کوئی کام تمہیں وہ کہیں تو خوش دلی کے ساتھ اسے بجا لاؤ. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب ان کے ساتھ گفتگو کرو تو اس طریقے سے گفتگو کرو مہذب انداز میں کہ ان کے دل کو کبھی بھی کسی قسم کی رنجش نہ آئے تمہارے بارے. یہ فرمان الہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابام قرآن مقدس میں اعلان کرنا ہے. تو ہر اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کی عزت کریں، ان کا احترام ہمیشہ ان کی زندگی میں بھی اور بعد وفات بھی بتائیں. ایسا نہیں کہ صرف زندگی میں ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے اور بعد وفات انہیں بھول جائے. آج کی یہ بزم کی مناسبت والدین سے محبت کی ایک دلیل کو پیش کر رہا ہے. جناب منظور خان صاحب نے اس مجلس کو منعقد کر کے اپنے والدین سے سچی محبت کا اظہار کیا ہے کہ یہ اپنے والدین سے سچی محبت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس محبت کو برقرار رکھے. کیونکہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جب انسان اس روئے زمین سے رخصت ہو جاتا ہے تو ان کے تمام اعمال کے جو سلسلے ہیں وہ منقطع ہو جائے. اب عمل ان کے خاتے میں نہیں جڑ سکتا. جو کچھ اس نے عمل کر لیا اب قبر میں وہی اس کا سہارا ہوتا ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں چند چیزیں ایسی ہیں جو بعد وفات بھی اسے فائدہ پہنچاتے ہیں. تو چند چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک اہم کڑی جو ہے نیک اولاد.
اگر اس شخص نے نیک اولاد کو اپنے پیچھے چھوڑا اور وہ نیک اولاد ان کے لیے درود و سلام، قرآن مقدس کی تلاوتیں، اوراد، ذکر و اذکار وغیرہ پڑھ کر اپنے والدین کے نام ایصال ثواب کرتا رہے تو ان کے والدین کو اس کا فائدہ مکمل طور سے ملتا ہے اور ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے جڑنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایک بزرگ جو ہے ایک قبرستان سے گزرتے ہیں تو انہوں نے اہل قبرستان کو کچھ قرآن مقدس کی تلاوتیں کی اور بخش دیا۔ رات کو جب وہ اپنے گھر کو پہنچتے ہیں اور جب آرام کرنے لگتے ہیں، آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہی قبرستان ہے اور جیسے ہی وہ ایصال ثواب ان مرحومین کے نام کرتے ہیں، تمام قبر والے اٹھ کر نیکیوں کو چھیننے لگتے ہیں، چھینا جھپٹی کرنے لگتے ہیں اور پہلے ہمیں مل جائے پہلے ہمیں مل جائے۔ وہ بزرگ یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں اور انہی قبرستان والوں میں ایک ایسی خاتون کو دیکھتے ہیں جو خاتون بالکل پرسکون طریقے سے اپنے قبر میں بیٹھی ہوئی ہے، نہ نیکیوں کو لینے کی رغبت اور نہ ہی چھینا جھپٹی کی کوئی پریشانی۔ بزرگ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ حافظ قرآن ہے، میں نے اپنے پیچھے ایک ایسی اولاد کو چھوڑا ہے جو قرآن مقدس کا حافظ ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ کام کرتا رہتا ہے، اس کی زبان قرآن مقدس کی آیات سے تر ہوتی رہتی ہے، زبان سے قرآن مقدس کی تلاوتیں ہوتی رہتی ہیں اور جب شام کو وہ سونے سے پہلے نماز عشاء ادا کرتا ہے اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھا کر جو کچھ وہ دن بھر پڑھتا ہے میرے نام ایصال ثواب۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ ان نیکیوں کو زیادہ ضرورت ان لوگوں کو ہے جن کے اولاد نے انہیں بھلا دیا، کیونکہ ان کی اولاد ان کے لیے دعا اور استغفار نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان نیکیوں کو، ان نوافل کو لینے کے لیے چینا جھپسی کر رہے ہیں۔ میرا بیٹا ہر دن میرے لیے قرآن مقدس کی تلاوت کر کے میرے نام ایصال ثواب کر دیتا ہے، اسی لیے مجھے ان نیکیوں کی فی الوقت ضرورت ابھی نہیں ہے کیونکہ میرا بیٹا جو ہے میرے لیے ایصال ثواب کرتا ہے۔ یہ واقعہ تو ختم ہو گیا۔ اتفاق یوں ہوا کہ ایک عرصے کے بعد اس بزرگ کا پھر اسی قبرستان سے گزر ہوا، وہ تمام واقعہ، وہ تمام پس منظر خواب کا ان کے نگاہوں کے سامنے تھا۔ انہوں نے پھر قرآن مقدس کی تلاوتیں کی، ہاتھوں کو اٹھایا رب کی بارگاہ میں اور اہل قبرستان کو بخش دیا۔ معمول کے مطابق رب کو دکھانا مقصد تھا۔ بزرگ اپنے گھر گئے، رات کو جب نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں اللہ نے پھر وہ کرشمہ دکھایا، پھر وہ معاملات، وہ پس منظر ان کے سامنے رکھ دیا۔ تمام قبر والے اسی طریقے سے چینا جھپٹی کر رہے ہیں اور ایک عجیب و غریب چیز انہوں نے دیکھی، وہ یہ تھا کہ وہ خاتون جو پرسکون طریقے سے اپنے قبر میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ ان نیکیوں کو لینے کے لیے وہ بھی چینا جھپٹی کر رہی تھی۔ بزرگ نے یہ منظر دیکھ کر ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس دن تو تم نے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، قرآن مقدس کی آیات تمہارے لیے دیکھتا ہے، پھر آج کیا ضرورت پیش آئی کہ تمہیں بھی ان نیکیوں کو لوٹنے کے لیے سامنے آنا پڑ گیا۔ اس خاتون نے نفناک آنکھوں سے کہا کہ اب وہ میرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، ایک سڑک حادثے میں میرا بچہ جہاں بحق ہو گیا، ان کی روح تب سے اسی سے پرواز ہو گئی، اب میرا اس روح زمین پر کوئی نہ رہا جو میرے لیے پرسنلی اسپیشلی ایصال ثواب کر سکے، اسی لیے اب مجھے بھی ان نیکیوں کی ضرورت ہے۔ کیا سمجھ میں آیا کہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب وقتاً فوقتاً ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ جو کچھ ہم نے عمل کیا صبح سے لے کر شام تک، تمام اعمال کو اپنے والدین کے نام بخش دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ ایک بندہ جو کچھ بھی پڑھتا ہے اور اسے اپنے مرحومین کے نام ایصال ثواب کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اگر ایک آیت ایک انسان پڑھ کر اپنے والد، اپنی والدہ، اپنے دادی، اپنے دادا کے نام ایصال ثواب کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اس کا ثواب اس کو مل گیا اور پڑھنے والے کو کچھ نہ ملا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پڑھنے والے کو 10 گنا ملا، اور اگر اس نے 2 لوگوں کو بخش دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 20 گنا اسے۔
ने की, 2 लोगों को किया तो 20 ने की। अब इसी तरीके से आप कैलकुलेशन करते जाइए, जितने लोगों के नाम पर आपने इसाले सवाब किया उतने लोगों को भी मिल गया, और उसका 10-10 गुना एक आदमी का जोड़कर अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे को इतनी बड़ी फजीलत है। और हम इस बड़ी फजीलत से महरूम हैं। मिसाल के तौर पर अपने आप में आप जरा गौर करके देखिए कि सुबह से लेकर शाम तक हमने एक पारा कुरान की तिलावत की और हमने किसी को नहीं बख्शा कि ये मेरे लिए है, क़यामत के दिन ये मुझे काम आएगी। तो सिर्फ एक ही पारे का सवाब हमें मिलेगा क़यामत के दिन, बेशक मिलेगा, लेकिन ये एक पारे का सवाब हमने अपने मरहूमीन के नाम इसाले सवाब, अपने अब्बू अम्मी के नाम, अपने दादा दादी के नाम, अगर इन 4 लोगों के सिर्फ 4 लोगों के नाम हमने इसाले सवाब कर दिया तो इन चारों को एक पारे का सवाब मिला और मुझे 40 पारों का सवाब। कितनी बड़ी फजीलत है। इसीलिए हर बंदे को चाहिए, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे असलाफ का ये तरीका रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक वो जितनी नेकियां करते हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम थे, वो हमेशा हमें इस बात की तलकीन किया करते थे कि बेटे सुबह से लेकर शाम तक जितनी इबादतें करो, जितनी नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, कुरान की तिलावत करो, जिक्र अज़कार करो, शाम को सोने से पहले तमाम के तमाम बुजुर्गान दीन के नाम, अपने वालिदैन के नाम, अपने खैश-ओ-गाइब के नाम, तमाम लोगों के नाम इसाले सवाब कर देना। क़यामत के दिन इतना बड़ा तोहफ़ा अल्लाह तबारक व तआला देगा जिसकी तुम्हें उम्मीद भी। तो हर एक बंदे को चाहिए कि अपने मरहूम वालिद, अपनी मरहूमा वालिदा, अपने आबा व अजदाद, खैश-ओ-गाइब के लिए हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहे, उनके हक़ में दुआएं करता रहे, क्योंकि तमाम आमाल उनके मुतबा हो जाया करते हैं। फ़कत जो जारी रहने वाली चीज़ है वो यही है कि उनके नेक औलाद जो है उनके लिए इसाले सवाब करता है। तो वालिदैन का इंसान को हमेशा फर्माबरदार रहना चाहिए और अपनी मोहब्बत का इज़हार हर दिन करना चाहिए, ना कि साल में एक बार, 2 साल में एक बार, हमेशा अपने वालिदैन का फर्माबरदार। मुनासिबत को कबील की निकाह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नति, निकाह मेरी सुन्नत। एक और हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लंबी हदीस है, इसका टुकड़ा है, वमन रग़िबा अन सुन्नति फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से रूगर्दानी की वो हम में से नहीं। मालूम चला कि जब इंसान हद्दे बुलूग को पहुँच जाए और नानो नफ़्का पर कादिर हो, यानी इसकी मिसाल है कि अपनी ज़ौजा को खिला सके, पिला सके, औलाद होने पर उसकी हिफाजत कर सके, इतनी वसाअत, इतनी ताकत जिसके अंदर है, तो उस शख्स को निकाह करना ज़रूरी हो जाता है, वरना सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तर्क करना है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द जो है अपनी ख़वातीन के लिए लिबास है और ख़वातीन अपने मर्दों के लिए लिबास है। लिबास का हुक्म फरमाया गया क्योंकि एक दूसरे के जो है मामलात को समझने वाले ये लोग होते हैं। आपसी मामलात को आपस में हल करने का एक तरीका हमें इस आयत के तरीक़ा से मिलता है। एक दूसरे की इज्जत पर पर्दा पोशी करना। अगर ज़ाहिरन कोई खलकशार हो जाए, कोई थोड़ी सी बात हो जाए, तो इस आयत करीमा के मुताबिक ज़ौजाइन के ऊपर ये लाजिम है कि बजाय इस बात को दूसरों तक पहुँचाने के आपस में बैठ कर इन मामलात को हल कर लिया। तो इन तमाम चीज़ों का अमल हमारे पास कब आएगा? जब हम कुरान का मुताला करेंगे, अहादीस मुस्तफ़ा को पढ़ेंगे, सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत पर अमल करेंगे, उसे पढ़ेंगे, तभी हमें ज़िंदगी जीने का सलीका आएगा। निकाह करना तो एक आसान अमर है। दुनियावी ज़िंदगी में इंसान जब हद्दे बुलूग को पहुँचता है तो वालिदैन की रज़ामंदी के साथ, अहले खाना की रज़ामंदी के साथ निकाह तो कर लेता है। निकाह करने के बाद के जो उमूर हैं, ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़े शरीयत मुतहरा ने दिए हैं, उस तरीक़े को हमने पढ़ा नहीं तो यकीन जानिए इस ज़िंदगी में इंसान ज़रूर फेल होगा। और अगर उसने शरीयत मुतहरा के दामन को थामते हुए मज़हब इस्लाम के उसूल और ज़वाबित को पढ़ लिया तो यकीन जानिए उसकी ज़िंदगी कभी भी जो है परेशानियों की तरफ नहीं जाएगी, उसकी ज़िंदगी खूबसूरत होगी। क्या है ज़िंदगी गुजारने का तरीका? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के भी हुकूक रख दिए हैं और मर्दों के भी हुकूक रख दिए हैं। तो एक इंसान
जब किसी खातून को निकाह करके अपने घर में लाता है तो उसके ऊपर अब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। अपनी ज़ौजा की हिफाजत करना उसके ज़िम्मे में आ जाता है। और आज का जो मुआशरा आप देखेंगे निगाहें उठाकर, तो निकाह के बाद कुछ अरसा नहीं गुजरता कि ज़ौजाइन में इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं, आपस में गुफ्तगू में और दीगर मामलात शुरू हो जाते हैं कि इस सब के पीछे की वजह क्या है। अगर हम अपने गरिबान पर झाँक कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन सब के पीछे हमारा भी हाथ हुआ करता है। अब जरा थोड़ा सा ज़हन को हाजिर करके देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक फर्द का हक जुदागाना मुतय्यन कर दिया है। बीवी का हक भी है, वालिदैन का हक भी है, अहले खाना का भी हक है। एक मर्द के ऊपर जितने लोगों का हक है उन तमाम लोगों के हुकूक को वो अदा करे। तो आप इसको अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लें, कभी भी उस घर में इंतशार नहीं होगा। उमूमन जब आप किसी शख्स से रूबरू होंगे कि आपकी ज़िंदगी क्यों अजीरन हो गई है, तो उसके पास 2-3 जुमले होते हैं कि बीवी जो है बात सुनती नहीं, बहुत जो है ज़बान दराज है, वालिदैन का फरमाबरदार नहीं, मेरी इज्जत भी नहीं करती, घर वालों का ख्याल नहीं रखती। दूसरा जुमला ये होता है कि मेरे वालिदैन हमें समझते ही नहीं, हमें बुरा भला कहते हैं, हमारी ज़ौजा को दुख देते हैं, परेशान करते हैं, वगैरह वगैरह। दोनों मामलात लोगों के सामने पेश होते हैं। अब ज़रा दिल को हाजिर करके ज़रा समझें इन सब के पीछे का पस मंज़र क्या है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान मैंने सबसे पहले आपके सामने रख दिया, वबिल वालिदैनि इहसाना, और दूसरी आयत मैंने पढ़ी थी, वला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, उन्हें उफ तक ना कहो। अब ज़रा गौर करके देखें कि एक नई नवेली दुल्हन है, एक नए घर में कदम रखती है, उस घर के जुमला उमूर से वो नाआशना है, इस घर के लोगों का मिजाज कैसा है वो नहीं जानती, हमारे जो शौहर हैं उनका क्या मिजाज है वो नहीं जानती, इस घर का तरीक़ा कार ज़िंदगी गुजारने का क्या है वो नहीं जानती। अब जो है एक नया शख्स एक नए घर में एंट्री लेता है तो अब जो है उसे सिखाना पड़ता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, इस घर के मामूलात क्या है। अब एक शख्स ऐसा है कि अब अपनी ज़ौजा के साथ ज़िंदगी गुजारने की इब्तिदा उसने कर दी। उनके बाप ने अगर कोई हुक्म दिया कि बेटे फला काम कर लेना, बेटे ने पुरतफाक अंदाज में जवाब दिया, कभी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं काम के लिए निकल रहा हूँ। आपकी होने वाली ज़ौजा ने इस जुमले को अपने ज़हन में जगह दे दिया कि मेरे शौहर के दिल में बाप के लिए कितनी जगह है, उसने जज कर लिया, उसने समझ लिया। दूसरे दिन फिर आपके बाप ने कहा कि ये काम करना है, अरे मेरे पास वक्त नहीं है, मैं फला काम के लिए निकल रहा हूँ। आपकी ज़ौजा के ज़हन में एक और बात नक्श कर गई कि बाप का कितना वजन है मेरे शौहर के अंदर में। वला तकुल लहुमा उफ को अगर आप ज़हन में रखते हैं तो यकीन जानिए जैसे ही आपके बाप ने कहा कि बेटा मेरा फला काम करना है, दुनिया का तमाम काम एक तरफ, बाप का हुक्म एक तरफ, क्योंकि शरीयत मुतहरा का फरमान है कि जब हुक्म की जो है फरमाबरदारी करनी हो तो बाप के हुक्म पर जो है इंसान फरमाबरदार है, और जब खिदमत की जिम्मेदारी आए तो माँ की खिदमत पहले करेगा बंदा। अब अगर माँ ने कहा कि बेटा मेरी तबीयत हलील है, मैं परेशान हूँ, तो बजाय बैठकर माँ की तकलीफों को सुनने के बंदा इग्नोर किया और अपने काम पे मशगूल हो गया। अब जरा गौर करें, आपकी जो नई नवीली दुल्हन है उसके ज़हनो दिमाग में ये खलफशरात भरते जा रहे हैं कि मेरे शौहर के दिल में अब इसके वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि इतनी जगह दूँ अपने वालिदैन के लिए। होना क्या था, अल्लाह के फरमान के मुताबिक, अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक खिदमत की जब बात आए तो माँ की खिदमत पहले की जाएगी, और हुक्म की फरमाबरदारी की बात आए तो वालिद के हुक्म की जो है पहले फरमाबरदारी की जाएगी। क्या होना था, जब माँ ने अपना दुखड़ा सुनाया कि मुझे परेशानी है, अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब चाहिए था कि वो जन्नत के कदम को छुए, अगर पैर में दर्द है तो बीवी को दिखाए कि मैं अपने माँ की खिदमत खुद अपने हाथों से क्या करता हूँ। लिहाजा तुम ये सबक ले लो आज के बाद से कि जब भी मेरी माँ किसी परेशानी में मुब्तला हो जाए तो बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी तामुल के मेरे माँ के पैर को दबाना, क्योंकि ये मेरा हुक्म है, मेरा अमल है। आपने अमल करके नहीं दिखाया, अब फिर जो है
जब बीवी आपके सर पे चढ़ जाती है तब आप ये सोचते हैं कि मेरी बीवी मेरे माँ बाप की खिदमत नहीं करती है। मेरे अजीज, आपने अपने माँ की नाकदरी की बीवी के सामने, अपने बाप की नाफरमानी की, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। वला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा के तहत आपने अपनी ज़ौजा को सबक नहीं सिखाया, क्योंकि कुरान का फरमान है अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, मर्द जो है औरतों के हाकिम है। हाकिम का काम क्या है कि अपने महकूम को सिखाए, तरबियत दे और उसे बेहतरीन राह पर लेकर चले, ना कि उसे बदतरीन राह पर छोड़ दे। अगर आपने अपने बाप के हुक्म की नाफरमानी की तो ये बदतरीन राह है जो अपने आप ने अपनी बीवी को सिखा दिया। अब ये बीवी सीख गई कि मेरे शौहर के ज़हनो दिमाग में बाप के लिए इतनी जो है मुस्कुराहट नहीं है, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है इतनी ज्यादा परेशान होने की। रफ्ता 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 वही खातून जिसे हमें अच्छी चीजें सिखानी थी, हमने बुरी चीजें उसके जहन में भर दी। अब फिर उससे ये तवक्को रखते हैं कि ये मेरी माँ की फरमाबरदारी करे, मेरी माँ ज़ईफ हो गई है, इस ज़ईफा की खिदमत करे, उन्हें वक्त पर खाना लेकर पहुंचे, उन्हें दवाइयाँ खिलाए। कभी नहीं करेगी, क्योंकि अमलन आपने उसे नहीं सिखाया। तरबियत का मामला ये होता है, जिस तरीके से आप अपने बच्चे की तरबियत करते हैं उसी तरीके से ज़ौजा की भी तरबियत करने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़ौजा जब नई नवेली किसी घर में आती है तो उसे उस घर के अहवाल को मालूम नहीं, उस घर के अहवाल मालूम नहीं होते हैं। जब वो अपने शौहर को देखती है कि मेरा शौहर सुबह उठता है सबसे पहले अपने माँ की खिदमत करता है कि माँ खाना नाश्ता किए नहीं किए, पानी पिए नहीं पिए, ब्रश किए नहीं किए, माँ के अहवाल को पूछता है, बाप के अहवाल को पूछता है, बाप के कमरे में जाता है, बाप के कदम पोशी करता है, बाप के कदम को दबाता है, सर को दबाता है, पूछता है क्या हाल है, तबीयत ठीक है कि नहीं है, कुछ आपके लिए बाजार से लाऊंगा या नहीं लाऊंगा। इन तमाम चीजों को जब हर दिन एक खातून देखती है, ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में ये बात बस जाती है कि मेरा शौहर अपने वालिदैन का फरमाबरदार है, अगर मैं इनके वालिदैन की नाफरमानी करूंगा तो फिर ये मुझसे नाराज हो जाएगा। यही एक आसान तरीका है, ना ही इधर से झगड़ा होगा ना ही उधर से झगड़ा होगा। तो इन झगड़ों को बीज डालने का जो बाइस बना वही शख्स बनता है जो बाद में ये कहता फिरता है कि माँ अलग परेशान कर रही है, बीवी अलग परेशान कर रही है। परेशान किसी ने नहीं किया, परेशान खुद तुम हुए हो, परेशानी के जड़ को तुमने बोया है। लिहाजा शरीयत मुतहरा के दामन को थामो, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा के तहत अमल करके दिखाओ। यकीन जानो कि आपकी जिंदगी एक खुशगवार जो है गहवारा बन जाएगी, जन्नत का एक गहवारा आपका घर बन जाएगा, आपकी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। जरूरत क्या है? फरमान मुस्तफ़ा पर अमल कर लेना, अहकाम इलाहिया पर अमल कर लेना, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करना, सीरत मुतहरा के दामन को थाम लेना। यकीन जानिए जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सुन्नतों को जगह दे दिया, उसकी जिंदगी में कभी खलबशात नहीं हो सकती, उसकी जिंदगी जो है बिल्कुल खुशगवार तरीके से गुजरती है। और हुकूक़े ज़ौजा जो है उस हुकूक़े ज़ौजा को इंसान अदा करता है। एक मर्द अब जो एक औरत को निकाह करके अपने घर में लाता है तो उसके भी कुछ हुकूक हैं, उन हुकूक की जो है पासदारी मर्द को ज़रूरी होती है। हर हाल में अपनी ज़ौजा के हुकूक की जो है पासदारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने ज़ौजा के हुकूक की पासदारी नहीं करते हैं तो ज़रा गौर करके देखें कि उसने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अपने बाप के घर को छोड़ दिया, जहां पैदा हुई 20 साल 22 साल 18 साल की जिंदगी जहां उसने गुजारा, उस तमाम खैशो अकारिब को, अपने खानदान वालों को खैराबाद करके सिर्फ और सिर्फ आपके घर को बसाने के लिए आपके घर में आ रहे हैं। अब उसकी इज्जत करना भी मर्द की जिम्मेदारी होती है। और ये रिश्ता जो है, रिश्ता इज़्दवाज जो है, वो मोहब्बत से परवान चढ़ता है, नफरतों से परवान नहीं चढ़ता। कभी भी ज़ौजा को जो है सख्ती के साथ कोई अमल नहीं करवाया जा सकता, बल्कि मोहब्बत के साथ ये रिश्ता पाया तकमील तक पहुँचता है। दुनिया के तमाम रिश्ते, जो भी रिश्ते हैं, कभी टूटते नहीं। भाई भाई का रिश्ता कभी नहीं टूटता, आपस में खलफशार हो जाए, झगड़ा हो जाए, लेकिन क़यामत तक ये दोनों भाई ही रहेंगे। बाप बेटा जिंदगी भर बाप और बेटे रहेंगे। अगर झगड़ा बीच में हो भी जाए मगर हमेशा वो बाप ही, ऐसा नहीं कि झगड़ा हो जाने के बाद बाप नहीं रहा, ये बेटा ना रहा। दुनिया के तमाम रिश्ते बाकी रहते हैं, मगर सिर्फ यही एक रिश्ता है जो टूट जाया करता है। ज़ौज और ज़ौजा का जो रिश्ता है वो टूट जाया करता है। तो इस रिश्ते को बना कर रखने के लिए सैराबी की ज़रूरत है, और वो सैराबी मोहब्बत है। मोहब्बत के ज़रिए से इंसान जिस रिश्ते को पाया तकमील तक
बचा सकता है और जिंदगी की गाड़ी को बेहतरीन तरीके से खींच सकता है। शौहर के हुकूक जो बीवी के ऊपर है, बीवी के हुकूक जो शौहर के ऊपर है, दोनों एक दूसरे का हक अदा करना शुरू कर दे, यकीन जानिए उस घर में कभी खलफिशार नहीं होगा। और ज़ौजैन की जो जिंदगी है, कुरान पाक के फरमान के मुताबिक लियस्कुनु इलैहा, अल्लाह का फरमान है कि अज़वाज जो बीवियां मर्दों को सुकून देने के लिए पैदा की गई हैं, वो सुकून कभी भी मुकद्दर नहीं होगा। बस ज़रूरत क्या है कि आप भी उनकी ज़रूरियात को समझें और वो भी आपकी ज़रूरियात को समझें। इस ज़रूरियात को कब समझेंगे? जब सीरत मुस्तफ़ा पर हमारा अमल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को हम पढ़ लेंगे, किस तरीके से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी को अमल में लाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाते हैं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या हुआ? सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, या रसूल अल्लाह, सर में दर्द है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों आलम के सरदार हैं, नबियों के नबी हैं, तमाम अंबिया के सरदार हैं। दोनों जहान की रहमतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े में हमें मिली हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नबी फरमाते हैं, आयशा मैं तुम मेरे लिए आटा गूंद दो, मैं तुम्हारे लिए रोटियां पका देता हूं। इस मोहब्बत से ये जो है रिश्ता जो है पाया तकमील तक पहुंचता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से अगर आप हुक्म फरमा देते तो खुदाम जो है जौक दर जौक आपके घर तशरीफ ले आता है परवानों की तरह, और रोटियां बनाकर रख देते, खाना बनाकर रख देते। लेकिन इमामुल अंबिया का तरीका देखिए, बीवी बीमार है, सर में दर्द है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी ना कहा, फरमाया तुम आटा गूंद दो, मैं रोटियां बना देता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने घर में झाड़ू दिया करते थे, अज़वाज के काम में हाथ बटाया करते थे। ये तरीका है नबवी तरीका। अगर इस तरीके पर इंसान जिंदगी गुजारे, यकीन जानिए कभी भी उस घर में खलफिशार नहीं होगा। तो शरीयत मुतहरा ने तमाम लोगों के जुदागाना हुकूक रख दिए हैं। वालिदैन के हुकूक अलग हैं, भाइयों के हुकूक अलग हैं, बहनों के हुकूक अलग हैं, ज़ौजा का हुकूक अलग है, सास ससुर के हुकूक अलग हैं। तमाम लोगों के हुकूक को अल्लाह तबारक व तआला ने जो है जुदागाना मुतय्यन कर दिया है। अब एक मर्द की जिम्मेदारी है कि हुकूक की पामाली ना करे बल्कि उनकी पासदारी करे। यकीन जानिए उनकी ज़िंदगी जो है लियस्कुनु इलैहा का मिसदाक़ बन जाएगी। और अगर शरीयत मुतहरा का दामन तुम्हारे हाथ से छूटा तो फिर दुनिया में आपने देखा होगा कि शादी करके फंस गया, बहुत परेशान हूँ, बीवी परेशान कर रही है, घर वाले अलग परेशान कर रहे हैं। इन तमाम परेशानियों का वाहिद हल सीरत मुस्तफ़ा पर अमल करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत पर जिस इंसान ने अमल कर लिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक अफ़आल को अपनी जिंदगी में जगह दे दिया, आप दिल पर नोट करके ले जाएं, कभी भी उस घर में खलफिशार नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।